Hello and good morning to all my dear students. I welcome you in the class of Accounts Standard 11th. After completion of part 1, today we will start up with second part of your accounts. From that first chapter, and the name of the chapter is Rectification of Errors. Let us go through first with its introduction and theory part of rectification of errors. First chapter from your part 2, that is rectification of errors. Now what is it? The process of detecting errors in accounts and rectifying them is called as rectification of errors. एक ऐसा प्रोसेस जहां पे अपन क्या करेंगे, एरर्स को डिटेक्ट करेंगे, उन्हें पहचानेंगे, उन्हें सुधारेंगे, रेक्टिफाई करेंगे. दैट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. Following are the objectives of rectification of errors. Number 1 is when the error is detected in accounts before preparing a trial balance, it is to be rectified. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले अगर आपके अकाउंट्स में कोई भी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, तो उन्हें अपन को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा. सेकेंड वन इज व्हेन द एरर इज डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस of respective accounting year, it is to be rectified. While you are preparing trial balance and any of the error has been detected after preparation of trial balance, the first one was before preparation of trial balance and the second one is after preparation of trial balance, then you are supposed to rectify these errors. Now the third one is to determine true profit or loss from correct accounting records by rectifying the errors. The true status, the true financial position of the business can only be known after you have corrected the errors. Fourth, to show true financial position by preparing a balance sheet at the end of an accounting period based on correct accounting information by rectifying the errors. As I have taught you, financial position आपका true वाला तभी ही पता चल सकता है just after you have rectified all your errors. As per the accounting rule, if there is an error in amounts recorded in accounts, it cannot be rectified by deleting the same. Yes, this is very true. If 500 की जगह पे अगर आपने 50 लिख दिया है तो दिस कैन नॉट बी डिलीटेड. इसको अपन कट नहीं कर सकते हैं, इसको अपन इरेज नहीं कर सकते हैं और इसको अपन डिलीट नहीं कर सकते हैं. वी आर सपोज टू गिव द रिवर्स इफेक्ट ऑन द ऑपोजिट साइड. टू रेक्टिफाई द एरर एंड अकाउंटिंग इफेक्ट इज गिवन related be rectified by deleting the two respective error. Rectification of error has a virtual importance in accounting system. Now, what are the types of accounting errors? Errors which do not affect the trial balance. एक ऐसे errors हैं जो trial balance को कोई भी affect नहीं करते हैं और दूसरे एक ऐसे errors हैं which do affect the trial balance. Now, मूविंग फर्दर इनका क्लासिफिकेशन अगर अपन स्टडी करेंगे तो व्हाट इट इज, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स, डू नॉट अफेक्ट एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, विच अफेक्ट, डू नॉट एंड अफेक्ट. इसके अंदर 5 एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं. दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट, error committed at the time of recording in primary books, compensatory errors. Now these all errors, these all mistakes which do not affect trial balance. Now listed 4 are affecting the trial balance regarding posting, regarding balance of an account, errors in totaling the subsidiary books, errors committed at the time of preparing the trial balance. Now let us go through one by one.
Now, the first one is error of omission. When a transaction is totally omitted to be recorded in journal or subsidiary book or the ledger, such an error is known as error of omission. That means you have not at all recorded. The trial balance will tally even though error of omission is committed because posting is omitted on both the sides, that is debit and credit. ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा जस्ट बिकॉज आपने ना तो डेबिट साइड उसका इफेक्ट डाला है और ना ही क्रेडिट साइड, कंप्लीटली आपने उसको क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है. यू हैव फॉरगॉटन टू राइट दैट एंट्री. लेट अस गो थ्रू विथ एग्जांपल. कैश सेल्स ऑफ 2000 इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड. इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या हो जाता है, हमने अभी तक लिखा ही नहीं है. इफ we would have written then the journal entry was cash account debit to sales account. Now this is left unrecorded. That means we have neither debited 2000 neither we have credited 2000. So in trial balance this will have no effect. Second one given to you is a transaction is totally recorded in journal or subsidiary book or the ledger but posting of both accounts are omitted. Journal entry you have done, even subsidiary books में भी काम हुआ है, ledgers में भी गया है, but posting of both the accounts are omitted. Say for example, furniture purchased on credit from Raj Furniture Mart of 5000 is recorded in journal proper but it is forgotten to be posted in the accounts of furniture and Raj Furniture. आपने जर्नल प्रॉपर में एंट्री जरूर कर दी है पर ना तो आपने फर्नीचर में किया है लेजर पोस्टिंग, ना ही आपने राज फर्नीचर में जर्नल लेजर पोस्टिंग किया है. दैट्स व्हाई डेबिट साइड भी इफेक्ट नहीं है 5000 का, क्रेडिट साइड भी नहीं है. सो योर ट्रायल बैलेंस विल हैव नो इफेक्ट. नेक्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल और एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. व्हेन एन एरर अराइजेस because of non-compliance of accounting principles, it is known as an error of principle. These type of errors do not affect the trial balance because the amount of the transaction is same, but instead of one account, any another account is debited or credited. Let us go through. 20,000 worth machinery purchased is debited to purchase account. Now You have purchased machinery. तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो मशीन अकाउंट का डेबिट करते और टू कैश करते, बट इंस्टेड गलती से क्या हो गया है, परचेज डेबिट हो गया है. अमाउंट इज सेम 20,000, यहां पे भी 20,000 को ही डेबिट होना चाहिए था बट अकाउंट इज रॉन्ग. व्हेन अकाउंट इज रॉन्ग ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज 20,000 जो डेबिट होना चाहिए था वो हुआ ही है. नाउ हाउ वी आर सपोज टू रेक्टिफाई, ये टू कैश कैंसल आउट हो जाएंगे बिकॉज करेक्ट एंट्री में भी 20,000 कैश क्रेडिट है और रॉन्ग एंट्री में भी 20,000 कैश क्रेडिट है. नाउ मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था, हुआ नहीं है. रेक्टिफिकेशन एंट्री में अभी अपन उसको डेबिट करेंगे. बाय मिस्टेक परचेज अपन का क्या हो गया है, डेबिट हो गया है, जो होना नहीं चाहिए था. एज आई हैव टॉट यू अर्लियर कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकेंगे, हम इसको कट नहीं कर सकेंगे बिकॉज दिस इज योर अकाउंट्स. हमें इसको क्या करना होगा, रिवर्स ऑपोजिट एंट्री देके इस अमाउंट को नलीफाई करना होगा. परचेज को हमने बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया है, अमाउंट को नलीफाई करने के लिए परचेज को वही अमाउंट से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. इज दिस क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल टॉट टू यू इज कमीशन रिसीव्ड 600 फ्रॉम रहीम. आपको कमीशन मिला है. सो आपकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश टू कमीशन, बट बाय मिस्टेक आपने रहीम कर दिया है. कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट. नाउ कैश, गलत एंट्री में भी कैश डेबिट है, सही एंट्री में भी कैश को डेबिट ही होना चाहिए था. सो देयर इज नो एरर बिटवीन कैश अकाउंट्स. नाउ रहीम को बाय मिस्टेक इन्होंने क्या कर दिया है, क्रेडिट नहीं होना चाहिए था. टू नलीफाई दिस इफेक्ट हम रहीम को क्या करेंगे,
डेबिट करेंगे। और कमीशन को क्या होना चाहिए था करेक्टली, 600 से क्रेडिट, यहां पे भी हम कर देंगे 600 से क्रेडिट। सो योर रेक्टिफाइड एंट्री विल बी रहीम्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इज दिस क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड वन, दैट इज एरर ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट। रिसीव्ड 1000 फ्रॉम ईवा, हमको किससे मिला है पैसा? ईवा से मिला है। कैश टू ईवा होना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक अपन ने क्या कर दिया है? रिया कर दिया है। नाउ कैश एंड कैश, दीज बोथ आर करेक्ट। हमारा जो एरर वाला है, मिस्टेक वाली एंट्री है, उसमें भी कैश का इफेक्ट बरोबर है और करेक्ट वाले में भी कैश सही है। सो again these cash will be nullified against each other because they both are correct. Now रिया को बाय मिस्टेक हमने क्रेडिट कर दिया है, पैसा हमें ईवा से मिला है। नाउ अगेन एज आई टॉट, हम कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं, हम इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, हमें उसको क्या करना होगा? रिवर्स इफेक्ट देना होगा। हमें अगर क्रेडिट बाय मिस्टेक हो गया है, हमें ये क्रेडिट इफेक्ट नहीं चाहिए। टू नलीफाई दिस क्रेडिट इफेक्ट हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो रियाज अकाउंट डेबिट, और ईवा को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। तो हम यहां पर लिखेंगे टू ईवाज अकाउंट। यहां पर अपन ने क्या कर दिया है? रॉन्ग अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है। दैट इज रिया की अकाउंट में 1000 दिखाया है हमने, जो यहां पर ईवा है ओरिजिनली। सो ईवा का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 1000 से, और रिया का बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया है, वापस से उसको डेबिट कर देंगे। सो दिस डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट विल बी नलिफाइड अगेंस्ट ईच अदर। फोर्थ एरर इज error of commission. Transactions recorded in correct book by more or less amount. Now let us go through with example. Goods of 500 sold to शाहिद। आपने क्या किया है? गुड्स शाहिद को बेचे हैं, और करेक्ट एंट्री शुड बी शाहिद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट बाय मिस्टेक what you have done is 50 रुपीज आपने यहां पे दिखाया है इंस्टेड ऑफ 500। एंट्री इज करेक्ट, शाहिद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, शाहिद टू सेल्स। इंस्टेड ऑफ 500 यू हैव डन द एंट्री ऑन बोथ द साइड विथ ₹50। यहां पर ओरिजिनली एंट्री इज ऑफ 500, बट while writing the entry हमने less amount record किया है। Now the concept I have taught you, undercast is on the same side and overcast is on the opposite side. Now what is this? Is this undercast or overcast? So आप देख सकते हैं 500 का 50 रिकॉर्ड हुआ है, that is undercast. अंडरकास्ट में हम क्या करेंगे? सेम साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो योर करेक्ट एंट्री विल बी शाहिद टू सेल्स 450। शाहिद को और 450 से डेबिट करेंगे तो 500 मैच हो जाएगा, और सेल्स को और 450 के साथ क्रेडिट करेंगे तो यहां पे करेक्ट एंट्री के साथ मैच हो जाएगा। नाउ बैंक चार्जेस हैं 70 रुपीज के। सो एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, और हमारा अकाउंट उसमें गिवर होता है, हमारी बैंक गिवर होती है, दैट्स व्हाई बैंक चार्जेस टू बैंक 70। दिस इज द ओरिजिनल करेक्ट एंट्री। बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया है? 700 ओवरकास्ट कर दिया है। ओवरकास्ट इज ऑलवेज ऑन दी ऑपोजिट साइड। 70 आना चाहिए था, आया है 700। सो डिफरेंस इज ऑफ 630। 630 से क्या हुआ है? ज्यादा डेबिट हो गया है, और 630 से ज्यादा क्रेडिट हो गया है। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, हमें अभी इसका रिवर्स करना पड़ेगा, हमें इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे 630 से, और ये जो बैंक चार्जेस हैं उसे क्रेडिट करेंगे 630 से। दिस इज व्हाट ओवरकास्ट ऑन ऑपोजिट साइड। बैंक यहां पे क्या है, और ओरिजिनली बैंक क्या होना चाहिए? क्रेडिट।
पर ज्यादा अमाउंट से बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हो गया है 700 से। ये 700 के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए 630 से क्या करेंगे, अपन बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक चार्जेस डेबिट होने चाहिए थे और 700 से गलत अमाउंट से हो गए हैं। अभी हमें ये 700 का इफेक्ट हटाने के लिए रिवर्स इफेक्ट उसका दिखाएंगे और अमाउंट कितना आएगा, डिफरेंस अमाउंट दैट इज ऑफ 630। Now moving further, that is transactions recorded in wrong subsidiary book. हमने जो लास्ट ये वाला स्टडी किया that was transactions recorded in correct subsidiary book but with more or less amount. Now यहाँ पे तो हमने टोटली बुक ही चेंज कर दिया है बाय मिस्टेक। सोल्ड गुड्स ऑफ 800 टू पायल, हमने सेल्स किया है। दिस शुड बी रिकॉर्डेड इन योर सेल्स बुक। करेक्ट एंट्री शुड बी पायल टू सेल्स विथ 800। अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, हमने क्या कर दिया है, रॉन्ग सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। हमने ये ट्रांजैक्शन को परचेज ट्रीट करके काम किया है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू पायल्स अकाउंट। क्वेश्चन गिवन टू यू इज गुड्स of 800 sold to Payal is recorded by mistake in purchase book. By mistake हमने उसको purchase book में दिखाया है। So now what we are supposed to do is, please do concentrate over here. पायल के अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था। Now this is my correct entry and this is my wrong entry. पायल को डेबिट होना चाहिए था। यहां पे आप डेबिट में चेक करो, पायल डेबिट है नहीं है। अभी हम पायल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओनली आई एम टीचिंग यू दी इफेक्ट, अमाउंट के ऊपर बाद में ध्यान देंगे। नेक्स्ट इज टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट एंट्री में सेल्स क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। आप देख सकते हैं क्या सेल्स यहां पर क्रेडिट हुआ है, नहीं हुआ है। हम सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नाउ व्हाट वी हैव डन इज, करेक्ट में से रॉन्ग को कंपेयर किया। अभी अपन क्या करेंगे, रॉन्ग में से करेक्ट को कंपेयर करेंगे। परचेज बाय मिस्टेक क्या हो गया है, डेबिट। अब परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए था। ये परचेज के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट डालेंगे। डेबिट इफेक्ट यहां पे बाय मिस्टेक है, तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। नाउ ये रॉन्ग एंट्री में पायल क्या हो गई है, क्रेडिट, पर पायल को होना क्या चाहिए था, डेबिट। अब पायल को हम डेबिट करेंगे। नाउ यू कैन सी पायल ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, तो हम पायल का नाम दो बार नहीं लिखेंगे, इसके अमाउंट में डबलिंग कर देंगे। 800 से एक बार डेबिट है, ये वाला भी 800 जो यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट में आएगा, तो इट विल कम टू 1600। और सेल्स का ये 800 यहां पर, परचेज का ये 800 यहां पर। सो 800 प्लस 800 कम्स टू 1600। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड type of error, that is transaction is recorded in wrong subsidiary book with wrong amount. Now यहां पे फर्स्ट स्टेप पे अपन ने सीखा था सब्सिडरी बुक सही थी, अमाउंट मोर और लेस था। सेकेंड में हमने सीखा अमाउंट इज करेक्ट बट सब्सिडरी बुक चेंज हो गया है। नाउ द थर्ड वन इज कंप्लीटली हमारा सब्सिडरी बुक भी रॉन्ग है एंड अमाउंट इज ऑल्सो रॉन्ग। द ट्रांजेक्शन गिवन टू यू इज, it is on page number 4. Goods of 400 returned from Pradeep is wrongly recorded in purchase book as 4000. 400 के goods हमें रिटर्न हुए हैं प्रदीप से, जो बाय मिस्टेक हमने परचेज बुक में 4000 ट्रीट किया है। नाउ गुड्स आर रिटर्न्ड फ्रॉम प्रदीप, प्रदीप ने हमें रिटर्न किया है, सो हमारा वो क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा। सो हम क्या मानेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट विद द अमाउंट 400। इज दिस क्लियर? नाउ मिस्टेक क्या हो गया है, हमने उसको परचेज माना है, सब्सिडरी बुक इज ऑल्सो रॉन्ग एंड द अमाउंट इज ऑल्सो रॉन्ग। 400 की जगह हमने 4000 ट्रीट किया है। परचेज माना है, इसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप्स अकाउंट किया है। वापस से अपन वही काम करेंगे, करेक्ट में से रॉन्ग को कंपेयर करेंगे, देन रॉन्ग में से करेक्ट को। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था,
हुआ है डेबिट, नहीं हुआ है। यहां पर हम सेल्स को क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे कितने से, 400 से। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज प्रदीप को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। प्रदीप यहां पर क्रेडिट होना चाहिए था, यहां पे भी प्रदीप क्रेडिट ही हुआ है, बट अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट का मैटर है। यहां पर सिर्फ 400 से क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ कितने से है, 4000 से हुआ है। क्या हुआ है, ओवरकास्ट हुआ है। ओवरकास्ट इज ऑलवेज ऑन दी ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड यानी क्या करेंगे हम, जो प्रदीप क्रेडिट है इसको अपन डिफरेंस निकालकर प्रदीप को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो 400 से ही होना चाहिए था, ज्यादा से हो गया है, द डिफरेंस इज ऑफ 3600, हम प्रदीप को डेबिट करेंगे 3600 से। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अभी अपन क्या कंपेयर करेंगे, रॉन्ग में से करेक्ट को। परचेज को डेबिट कर दिया है, परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम परचेज के इफेक्ट को हटाने के लिए, नलीफाई करने के लिए रिवर्स इफेक्ट देंगे। डेबिट यहां पर है, हम क्या करेंगे, परचेज को 4000 से क्रेडिट करेंगे। इज दिस क्लियर? सो दिस वॉज रॉन्ग सब्सिडरी बुक विथ रॉन्ग अमाउंट। नेक्स्ट कम्स इज compensatory error. What is this compensatory error? 100 is debited instead of 1000 to Ram's account. 1000 is debited instead of 100 to Shyam's account. क्या कहना चाहते हैं, 100 हमने डेबिट कर दिया है instead of 1000 to Ram's account. Now there are two accounts, Ram and Shyam. राम को हमने 100 से क्या किया है, डेबिट किया है, इंस्टेड ऑफ 1000 से होना चाहिए था, पर अभी तक हमने कितने से उसको किया है, 100 से डेबिट किया है। नेक्स्ट क्या बताया है, 1000 से हमने क्या कर दिया है, श्याम को डेबिट कर दिया है, और करेक्टली होना कितने से चाहिए था, सिर्फ 100 से होना चाहिए था। नाउ यहां पर क्या बताया है, 100 से हमने उसको डेबिट किया है, बट ओरिजिनली राम शुड बी डेबिटेड बाय 1000 से होना चाहिए था, 100 रुपए तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। नाउ मोर रिक्वायर्ड इज ऑफ 900। व्हाट इज द मैटर ऑफ, इट इज द मैटर ऑफ अंडरकास्ट। ये किसका एरर है, ये अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट मीन्स इट इज लेस, 1000 से होने की जगह पे सिर्फ 100 से हुआ है। अंडरकास्ट इज ऑन दी सेम साइड। इज दिस ओके? नाउ यहां पर क्या है, ओनली 100 से होना चाहिए था, एक्सेस हो गया है 1000 से, सो डिफरेंस कितना है, 900 से। तो 900 ये क्या है हमारा, ओवरकास्ट। तो ओवरकास्ट को अपन क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड। सो ओवरकास्ट इज ऑन ऑपोजिट साइड। अभी क्या किया अपन ने, राम को डेबिट किया 900 से, और श्याम को हमने क्रेडिट किया 900 से। सो आप देख सकते हैं इस एरर में भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, बिकॉज 900 की मिस्टेक इज ऑन बोथ दी साइड्स. So your entry will be Ram's account debit to Shyam's account by 900. So these